Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I'll be covering computer awareness for the upcoming CBSE Direct Recruitment Quota Examination 2026. This is the part 4 of the video series, and in this video, I'll be covering memory devices and previous year questions related to those. So this is a little bit about me. I had cleared the CBSE Assistant Secretary examination Tier 1 and Tier 2 of 2024-2025 had also appeared for the interview. However, the recruitment had unfortunately gotten cancelled in April 25. So, first of all, we'll talk about CPU, which is a processing device. ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है फुल फॉर्म इसका. It is also called the computer processor or a brain of a computer. ठीक है, the CPU contains of the control unit and the arithmetic and logic unit. ठीक है, ALU और CU होता है इसमें. The control unit, the CPU uses its control unit to access these instructions. The CU directs and coordinates most of the operations of the computer. ठीक है, यहाँ access आएगा. तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? एज द नेम सजेस्ट इट इज़ टू कंट्रोल द इंटायर सिस्टम. ठीक है, तो बेसिकली इसमें इंस्ट्रक्शंस रहते हैं विच डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. द ऑपरेशंस आर मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. The operations are generally measured in megahertz. Then we have the arithmetic and logic unit. The ALU performs the arithmetic, comparison and logical operations. ठीक है, comparison operation include comparing one data item to another to determine if the first item is greater than, equal to or less than the second item. ठीक है, इसमें आई विल जस्ट लुक एट दिस वंस. कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर क्या क्या है? इनपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, मतलब सीपीयू में क्या क्या रहेगा? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इंटरनल मेमोरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज द आउटपुट यूनिट. नाउ सीपीयू में क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू. ठीक है, दे बेसिकली फेच एंड डिकोड डेटा. फिर एग्जीक्यूट भी सीयू कंट्रोल यूनिट वगैरह करते हैं. और स्टोरेज होती है मेन मेमोरी में. ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या क्या होता है? अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशन, ऑल ऑफ दीज हैपन इन दी एएलयू. ठीक है, फिर इसमें वही इनपुट्स जाते हैं अंदर डेटा के फॉर्म में एंड आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो नेक्स्ट सीपीयू का देख लेते हैं. कंट्रोल यूनिट, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू. इट इज़ कॉल्ड द पल्स सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, पल्स क्या, देखिए लर्न करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं. पल्स क्या करता है? ह्यूमंस का हार्ट बीट के बारे में बताता है ना. देयरफॉर इट कंट्रोल्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऐसे ही बोलने को बोल सकते हैं. ठीक है, इट कंट्रोल्स द लाइफ. Similarly, the pulse system of the computer controls the entire computer itself. That is why the pulse system is the control unit of the computer. ठीक है, ऐसे लर्न करने के लिए ऐसे लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट है मेन फंक्शंस क्या क्या है? कंट्रोलिंग द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर हार्डवेयर. ठीक है, देन कंट्रोलिंग functioning of the ALU, arithmetic and logic unit, fetching data from main memory and storing them instantly, then to read instructions and giving orders to implement them. ठीक है, तो ये सब काम रहते हैं कंट्रोल यूनिट के. देन वी गो टू द मेमोरी रजिस्टर. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द कंप्यूटर सिस्टम, stores data that CPU can access quickly. ठीक है, these are small high speed storage units and are located within the CPU. It ensures rapid access to essential information. ठीक है, then first of all we have general purpose registers for handling various tasks like storing data, temporarily doing calculation, etc.
temporarily during calculations. Then we have special purpose registers and control registers. Control registers basically manage how a processor behaves and is configured. ठीक है, registers are much smaller but faster than the cache memory and located within the CPU itself. ठीक है, तो इसको एक और बार देखिए, इसमें क्या दिया क्या है. बेसिकली जो मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं ना, they are very small units which are located within the CPU, and they provide access to essential information very fast. ठीक है, और तीन टाइप के रजिस्टर्स हैं प्राइमरली. द फर्स्ट वन इज़ अ जनरल पर्पस रजिस्टर, द सेकेंड वन इज़ अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर एंड द थर्ड वन इज़ अ कंट्रोल रजिस्टर. जनरल पर्पस रजिस्टर का क्या है? वेरियस जनरल टास्क इट हैंडल्स लाइक स्टोरिंग डेटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग अ कैलकुलेशन. Special purpose registers का as the name suggests it is for special tasks. ठीक है, और control registers क्या है? They manage how a processor behaves and is configured. मतलब control registers का काम क्या है? कंट्रोल करना. ठीक है, कोई भी प्रोसेसर को कंट्रोल करना, दैट इज द वर्क ऑफ अ कंट्रोल रजिस्टर. ठीक है, फिर बस इसका मेन चीज़ क्या थी पूरे इसमें? दे आर हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट्स. नेक्स्ट है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. इट परफॉर्म्स द एक्चुअल वर्क ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. ठीक है, इट परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. नेक्स्ट है मेमोरी डिवाइसेस. द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर में बी आइदर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल. Volatile मतलब temporary memory and non-volatile is permanent. So volatile memory is lost when the computer is switched off, whereas non-volatile memory there is no loss of memory as such. ठीक है, हायरार्की ऑफ मेमोरी यूनिट्स बता देते हैं. तो सबसे पहले देर आर बिट्स. ठीक है, बाइनरी नंबर्स होते हैं, डिजिट्स 0 या 1, उनको हम लोग वी कॉल देम बिट्स. ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी. ठीक है, देन 4 बिट्स कॉन्स्टिट्यूट अ निबल. ठीक है, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स. ठीक है, उसके बाद भी 8 बिट्स कॉन्स्टिट्यूट 1 बाइट. ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है 1010, ये सारे दे कॉन्स्टिट्यूट 1 बाइट. 8 बिट्स चाहिए होते हैं. बिट एंड बाइट आर बोथ यूनिट्स ऑफ मेमोरी यूनिट, where bit is the smallest unit of computer memory and 8 bits together make 1 byte and 4 bits together make 1 nibble. नेक्स्ट है बाकी का हायरार्की देख लेते हैं. 1 nibble is 4 bits, 1 byte is 8 bits, फिर 1 किलोबाइट इज 1024 bytes. ठीक है, 1024 मतलब 2 to the power of 10. ठीक है, फिर 1 मेगाबाइट इज 1024 किलोबाइट्स. Then 1 gigabyte is 1024 megabytes. Similarly, 1 terabyte will be 1024 gigabyte. 1 petabyte will be 1024 terabyte. 1 exabyte is 1024 petabyte. 1 zettabyte is 1024 EB. और 1 yottabyte is 1024 zettabyte. ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए कोई निमोनिक होता होगा. लेट मी सर्च फॉर इट वंस. तो उससे इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर द होल थिंग. मेमोरी यूनिट्स निमोनिक. वैसे इसके हम लोग कैशे मेमोरी देख लेते हैं तब तक. देखिए, कैशे मेमोरी क्या होता है? इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी placed in between the RAM and the CPU. It basically increases the speed of processing. ठीक है, तो एज सच जो शुरू का पोर्शन है ना यहाँ पे, उसके लिए एक निमोनिक होता है बर्गर किंग मेक्स ग्रेट टोस्ट. ठीक है, तो बर्गर किंग के लिए बाइट, बर्गर किंग मेक्स ग्रेट टोस्ट. ठीक है, उसके बाद में फिर PEZY पेजी.
ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे? बर्गर किंग मेक्स ग्रेट टोस्ट। फिर पेजी, पेजी या इजी को हम पेजी बोल देते हैं, इजीली वो जल्दी से टोस्ट बना लेते हैं। तो पेजी में आएगा पीटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। ठीक है, बस इतना ही है। बर्गर किंग में बी इज फॉर बाइट्स, के किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। फिर पेजी इज पीटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर मेमोरी एंड डेटा ट्रांसफर। रैम और कैशे मेमोरी होता है ना। देखो, रैम इज फास्टर दैन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्ट एज द कंप्यूटर प्रोसेसर. Because of a RAM, a CPU may have to slow down. To speed up the operations of the CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory, and that is known as the cache memory. ठीक है, अभी पहले भी पढ़ा था हमने। कैशे मेमोरी क्या है? इट इज समथिंग विच इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द रैम, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस चीज़ की होती है? कंप्यूटर प्रोसेसर की, मतलब इस पोर्शन की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, वेरी हाई स्पीड। वेराज रैम की इट इज़ कंपैरेटिवली लोअर स्पीड। ठीक है, सो हाउएवर रैम इज़ फास्टर दैन सेकेंडरी स्टोरेज। रैम मतलब प्राइमरी स्टोरेज होता है ना, सेकेंडरी स्टोरेज से फास्ट होता है पर CPU से स्लो रहेगा वो। ठीक है, तो इसलिए बिकॉज इट इज़ स्लोअर दैन द CPU, हम लोग यहाँ बीच में एक और मेमोरी डालते हैं, दैट इज़ नोन एज द कैशे मेमोरी। ठीक है, तो कैशे मेमोरी का क्या काम है? इट बेसिकली इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग इंस्टेंटली. ठीक है, नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU. Data bus sends data between the processor, memory unit, and input output devices, components of a computer system using physical wire called the bus. A system bus is the main set of electronic pathways within a computer that allows the CPU, memory and input devices to communicate with each other. ठीक है, तो बेसिकली वायर्स हैं ये, आप ऐसे समझ लीजिए। इन वायर्स का काम क्या है? टू टेक डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, either they take data from one place to another or they allow the different devices to communicate with each other. ठीक है, तो CPU और मेमोरी के बीच में कंट्रोल बस, बस मतलब वायर। ठीक है, फिजिकल वायर को ही बस बोलते हैं। तो इन सबको ही दे आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट बसेस। CPU और मेमोरी के बीच में जो भी बस होता है दैट इज़ नोन एज कंट्रोल बस और दी एड्रेस बस। और बाकी CPU एंड इनपुट आउटपुट और इन सब के बीच में जो बस होता है वो सिस्टम बस बोलते हैं, बिकॉज देयर मेन फंक्शन इज कम्युनिकेशन। वेर एज डेटा बस का फंक्शन है टू ट्रांसफर डेटा. ठीक है, next है input devices. An input device is any hardware component that allows you to enter data, programs, commands and user responses into a computer. So ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, 5-6 बार पढ़ लिया है, ये भी काफ़ी बार पढ़ लिया है, बट स्टिल जल्दी से देख लेते हैं. इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स: टच पैड्स, लाइट पेन, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ट्रैकर बॉल, कीबोर्ड, माउस. स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है? MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन एंड OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग. ठीक है, output devices, output is data that has been processed into a useful form called information. ठीक है, तो डेटा को अगर हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, उस इंफॉर्मेशन को. दिस इज नोन एज दी आउटपुट. ठीक है, कॉमन टाइप्स ऑफ आउटपुट क्या क्या है? टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है. ठीक है, ways to view output are known as the output devices. So we have a monitor, paper, printer, speakers or a headset, etc. So now we'll go to the PYQs. Let me tell you that CBSE का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है
उसके ज़्यादा पी वाई क्यूज़ है नहीं हमारे पास में, बिकॉज 2024 में पहली बार हुआ था शायद, तो उससे पहले के कोई पी वाई क्यूज़ नहीं है. हाउएवर CBSE कंडक्ट्स वेरियस अदर एग्जामिनेशंस लाइक KVS, NVS, EMRS, etc. And the pattern of these examinations is same as the pattern of the direct recruitment examination. ठीक है, तो इनमें भी वही होते हैं पेपर्स, जनरल अवेयरनेस का पेपर, इंग्लिश का पेपर, हिंदी, then we have logical reasoning, numerical ability as well as computer awareness. ठीक है, ये सब इनमें भी होता है. एंड आई हैड एनालाइज्ड द पेपर्स ऑफ दीज एग्जामिनेशंस एंड आई फाउंड देम टू बी वेरी सिमिलर टू द questions asked in this CBSE recruitment examination. ठीक है, since the same agency conducts all of these examinations, therefore it is the wise for us to do the PYQs of these examinations as well. ठीक है, तो मैंने वो भी लिए हैं इसमें. So we'll start with the previous year questions. So first of all, which of the following is a type of volatile memory in a computer system? So हमें पता है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वॉलेटाइल मेमोरी. वी हैव रेड अबाउट दिस बिफोर. ठीक है, ये NPS में 2025 में पूछा था. Volatile memory is the type of memory in which the data remains stored only as long as the power is supplied to the computer. ठीक है, when the computer is switched off or the power is cut, the stored data is lost. Random access memory is the main working memory of the computer and stores data and programs that are currently in use. Since its data is erased when the power is off, RAM is a volatile memory and is also called as the temporary memory. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज फास्टर दैन DRAM बट इज एक्सपेंसिव? DRAM स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, सो दिस इज NVS 19 का क्वेश्चन है. सो द आंसर फॉर दिस इज स्टैटिक रैम. ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा. स्टैटिक रैम और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी is faster than dynamic random access memory and does not require refreshing. ठीक है, it retains data as long as the power is supplied. Because of its high speed and complex structure, it is more expensive than DRAM. SRAM is commonly used in cache memory also. ठीक है, तो static RAM है, static है, therefore there is no need for refreshing. ठीक है, और this is more expensive also. Next question, which of the following is a type of non-volatile memory? Again NBS 19 का क्वेश्चन है. Non-volatile memory क्या रहेगा? ROM. ठीक है, read only memory is a kind of non-volatile memory, and based upon the options we can say that EPROM, that is erasable programmable, electrically erasable programmable read only memory, is a form of non-volatile memory. So erasable programmable read-only memory is a non-volatile memory, meaning it retains stored data even when the power is switched off. The stored data does not get erased on power failure and can be erased using UV light and reprogrammed also. ठीक है, नेक्स्ट है, in which category of read-only memory is electrical signal required to erase the stored content? So the answer is EEPROM. PROM. ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, इट अलाउज द स्टोर्ड डेटा टू बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली. इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी and is used for permanent storage because the data does not get erased even after the power is turned off. Next question है, the cache memory acts as a buffer between which two devices? So the answer for this is CPU and RAM. ठीक है, तो क्या होता है, जो रैंडम, मैं इसका पूरा आपको बता देती हूँ हायरार्की. जो प्राइमरी स्टोरेज है ना, दैट इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी स्पीड होती है, ज़्यादा होती है सेकेंडरी मेमोरी से. ठीक है, हाउएवर इसका स्पीड इज़ लोअर दैन द कंट्रोल यूनिट, या तो जो कंप्यूटर प्रोसेसर है ना CPU में, उससे स्पीड कम होती है रैम की.
दैट इज़ वाई जो CPU की स्पीड है इट बिकम्स वेरी लेस इन केस इट डिराइव्स मेमोरी फ्रॉम द रैम. दैट इज़ वाई एक बीच में एक डिवाइस देते हैं, हम उसको बोलते हैं कैशे मेमोरी. ठीक है, कैशे देते हैं विच बेसिकली इज़ फास्टर दैन द प्राइमरी मेमोरी एंड ये इंस्टेंटेनियसली कंप्यूटर प्रोसेसर को डेटा या इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है. ठीक है. सो इसके बाद ये इसका आंसर हो जाएगा CPU एंड रैम. Cache memory is a very fast memory located close to the CPU. Its main function is to reduce the speed difference between the CPU and the RAM. It temporarily stores frequently accessed data so that the CPU can access it faster, acting as a buffer between the CPU and the RAM. ठीक है? Which of the following statements is false? NVS 2022 का question है. Primary memory is faster than the secondary memory, so this is a correct statement. ठीक है. Primary memory is also referred to as the main memory, this is also correct. Secondary memory is direct access memory, this is wrong. Computer memory is used for data storage and processing, this is correct. ठीक है. जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं. So it cannot be directly accessed. Instead, data must be transferred first to the primary memory and only then can the CPU access the secondary memory. ठीक है. Therefore, saying that it is direct access is incorrect. तो जो secondary memory है उसको directly CPU नहीं access कर पाता है. Rather, it has first to be transferred to the primary memory and only then can the CPU access it. Next, which of the following kinds of ROM is masked off at the time of production? देखिए इसका फुल फॉर्म होता है MROM के बारे में आई जस्ट टेल यू. मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी होती है. इट इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and the data is permanently stored by the manufacturer and cannot be modified. Manufacturer permanently store कर लेते हैं and it cannot be modified. It is commonly used where data must remain unchanged. ठीक है. तो therefore इसको बोलते हैं कि ये मास्क ऑफ हो गई एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड एनीमोर. तो MROM बोलते हैं इसको, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी. Which of the following statements is true? NVS 2022 का क्वेश्चन है. Static RAM is slower than the dynamic RAM, so this is wrong. Then dynamic RAM uses capacitors and a few transistors, so this is correct. ठीक है. Static RAM is faster than the dynamic RAM and the dynamic RAM stores each bit of data using a capacitor and a transistor, so that is why statement 2 is correct. Next है, the information stored in the RAM can be checked with the help of which of the following? So the answer for this is BIOS. ठीक है. Basic input and output system performs hardware initialization during booting and checks memory components such as RAM. Therefore, RAM related information can be verified using BIOS. ठीक है. BIOS में क्या रहेगा? Hardware initialization होता है and it also ensures the proper functioning of the operating system. जो operating system है उसको load भी ये करता है. ठीक है. तो RAM related information is also verified using BIOS only. जैसे ही पावर ऑन करते हैं हम लोग, देन BIOS एक्टिवेट्स, देन ये करता है पोस्ट टेस्ट करता है, दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. ठीक है. उसके बाद इट लोड्स दी ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, उसको मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ. नेक्स्ट है, almost every computer has some amount of ROM which contains dash. So the answer for this is boot firmware. So I'll just tell you, the read-only memory contains boot firmware which controls the initial startup process of the computer and loads the operating system into the RAM. ठीक है. बूट का मतलब क्या होता है? रीबूट. बूट मतलब ऑन करना, स्विच ऑन करना.
है, तो बेसिकली बूट फर्मवेयर का काम क्या है, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो जो प्रोसेसेस उसमें हो रहे हैं उनको गाइड करता है ये, ठीक है। एंड इट ऑल्सो लोड्स दी ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। सो द आंसर इज ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये समरी अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। स्पीड हायरार्की क्या क्या है, सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं ना, दे हैव द फास्टेस्ट स्पीड, देन वी हैव द कैशे मेमोरी, एस रैम भी बोलते हैं, देन वी हैव मेन मेमोरी दैट इज डी रैम, डायनामिक रैम, एंड सेकेंडरी स्टोरेज इज द स्लोएस्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। नेक्स्ट क्या है, वॉलेटिलिटी कैसे रहता है। वोलेटाइल मतलब कि पता ही है ना, नॉन वोलेटाइल मतलब रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल वेयर एज रैम इज वोलेटाइल। देन रोम के टाइप्स क्या है, एम रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। देन बूट प्रोसेस में क्या क्या होता है, पावर ऑन होता है, देन रीड ओनली मेमोरी का बी आई ओ एस रन्स वेरियस टेस्ट्स, ठीक है। बी आई ओ एस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द रैम, ठीक है। नेक्स्ट अभी वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, KVS 2016 का है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ट्रू। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। हमें ट्रू बताना है ना, तो दिस इज रॉन्ग। सर्किट बोर्ड नहीं है तो मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है। रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा इज लॉस्ट व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑफ, दिस इज करेक्ट बिकॉज रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है, रैम इज लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर डेटा, तो अगेन रॉन्ग है, वॉलेटाइल मेमोरी है, शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी स्टोरेज। रैम कन्वर्ट्स द इंटरनल representation of an image into something that can be displayed using a computer monitor, तो ये कुछ भी लिखा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डिस्प्ले सिस्टम नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट KVS 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड टू ब्रिज द गैप between the speed of CPU and RAM, again repeated question है, cache memory is the answer, ठीक है। next question, identify whether the given statements are true or false. Both the dynamic RAM and cache memory have the same access speed, so this is wrong. Cache memory is way faster than the dynamic RAM. cache memory को हम लोग SRAM भी बोलते हैं, that is static RAM, ठीक है। उसके बाद both SRAM and DRAM can be used as main memory. नहीं देखिए, दिस इज करेक्ट बिकॉज प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है, रैम आता है और रोम आता है, ठीक है। और रैम का क्या क्या डिविजन्स है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। सो ऑल ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम क्या होता है, मेन मेमोरी, ठीक है। सो बोथ एस रैम एंड डी रैम आर फॉर्म्स ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। NVS 2022 का है, SDRAM is known as synchronous DRAM and is faster than general DRAM, ठीक है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज जो सिंक्रोनस DRAM होता है, इट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सिस्टम बस, thus making it faster than asynchronous general DRAM, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड है, therefore it is faster। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिंक्रोनाइज्ड RAM is faster than DRAM but requires continuous refreshing, so this is a wrong statement because SRAM मतलब static RAM जो भी होता है, it requires no refreshing, ठीक है। static RAM is indeed faster than DRAM but it is DRAM that requires continuous refreshing. static RAM holds the data as long as the power is supplied, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NVS 2022 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रैम नीड्स कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग, सो द आंसर इज डी रैम, ठीक है। और दूसरा क्या, मेरे को लगा था एस रैम दिया है, बट दिस इज एस डी रैम। एस डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सो दिस ऑल्सो रिक्वायर्स रेगुलर रिफ्रेशिंग। बोथ डी रैम एज वेल एज द सिंक्रोनस वेरियंट जो है इसका, both of them require simultaneous मतलब continuous refreshing. however जो एस रैम होता है, that is static RAM,
that does not require any refreshing. ठीक है, these capacitors leak charge over time and therefore require a continuous refresh signal to retain their data. तो इसको ऐसे लर्न करने के लिए ऐसे हम एक एनालॉजी देख सकते हैं कि जो डी रैम होता है, डायनामिक रैम होता है, इट इज़ लाइक अ लीकिंग बकेट. ठीक है, तो उसमें जो डेटा है ना, पानी के फॉर्म में डेटा है, उसको हम भरते हैं तो इट कीप्स लीकिंग. ठीक है, सो वी हैव टू कंटिन्यूसली रिफ्रेश इट विद मोर वाटर. कंटिन्यूस रिफ्रेश करना पड़ता है, ओनली देन इट इज एबल टू रिटेन द डेटा. लर्न समझने के लिए डायनामिक है. डायनामिक मतलब बहता हुआ पानी. डायनामिक मतलब फ्लो में है ना, बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर, उसके जैसे है ये. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट है एनवीएस का है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी. तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है? पी रोम, ई पी रोम, एस रैम एंड ई पी रोम. सो द आंसर फॉर दिस इज एस रैम. ठीक है, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम आर ऑल टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी. And SRAM, that is static random access memory, is a type of volatile RAM which is fundamentally different from non-volatile read-only memory. ठीक है, यहाँ पे वही डिवीजन दिया है, volatile RAM और non-volatile ROM का डिवीजन. SRAM and DRAM are examples of random access memory, whereas PROM, EPROM and EEPROM are examples of ROM. Which of the following statements about PROM is true? It is a sequential access memory, तो ये गलत है. It is a magnetic memory, this is also wrong. It is a non-volatile memory, so this is correct. ठीक है, so only third statement is correct. देखिए, जो programmable read-only memory होता है ना, it is a non-volatile memory. Once the data is written to it, it cannot be changed. It is a type of random access memory. Therefore, it is not sequential और magnetic. ठीक है, random access semiconductor memory रहता है ये. ठीक है, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं इसको, और सेमीकंडक्टर बेस्ड रहता है, मैग्नेटिक नहीं रहता है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सीक्वेंशियल नहीं है, रैंडम एक्सेस है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज और आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EEPROM. It is block-wise erasable or it is byte-wise erasable. So the answer is it is byte-wise erasable. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इट अलाउज द डेटा टू बी इरेज्ड एंड री रिटन बाइट बाय बाइट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सिग्नल. दिस इज इन कंट्रास्ट टू फ्लैश मेमोरी. ठीक है, विच इज ऑफन ब्लॉक वाइज इरेजेबल. सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन. इसके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, फ्लैश मेमोरी जो होता है वो ब्लॉक वाइज इरेजेबल होता है, whereas EEPROM is byte wise erasable. नेक्स्ट है एनवीएस का ही 2022 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्स इज द बेस्ट फॉर स्टोरिंग लार्ज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइल्स. सो द आंसर फॉर दिस इज DVD रोम. ठीक है, a DVD-ROM has a much larger storage capacity, nearly 4.7 GB, compared to all CD variants, जिसमें बस 700 MB इतना ही होता है. For large software application files, the higher capacity of the DVD-ROM makes it superior choice among the different options. ठीक है, नेक्स्ट है 2022 का क्वेश्चन है. Jones is looking for storing video files which he needs to carry place to place. Assuming that the files require storage space more than 600 GB, which of the following storage devices will be most appropriate? So, देखिए, DVD में अभी हमने पढ़ा था कि अराउंड जो DVD रोम होता है उसमें 4.7 GB स्टोर हो जाता है, वेरा CD के जो सारे वेरिएंट्स होते हैं यूजुअली 700 MB के अराउंड रहते हैं. ठीक है, उसके बेसिस पे इफ़ वी लुक एट दिस, with the requirement of over 600 GB, the standard pen drives, CDs and DVDs are insufficient. ठीक है, 600 GB चाहिए हमें.
CD में कितना है, 700 MB है। DVD में कितना है, 4.7 GB, 5 GB के आसपास है। पेन ड्राइव भी आपने देखा है 4 GB की होती है, कोई कोई 6 GB की होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वील हैव टू मूव टू एन एक्सटर्नल SSD। It offers very high storage capacity, often 1 TB, terabyte or more, has high durability and portability, making it an appropriate choice. ठीक है। इसका SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, 1 TB 2 TB ऐसे बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस होती है उसमें। नेक्स्ट है, ये ऐसे कम समरी टाइप दिया हुआ है, so we'll just have a glance through this. Cache memory is a CPU buffer category memory. It is slightly volatile. कैश मेमोरी को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैम। ठीक है, इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, तो लाइट जाने पे इट विल गो अवे। ठीक है, और ये जो रीड ओनली मेमोरी दैट इज़ नॉट वोलेटाइल एंड इवन एक्सटर्नल SSD इज़ नॉट वोलेटाइल। कैशे का स्पीड इज़ क्वाइट हाई। ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी है उसका थोड़ा सा कम रहता है। डायनामिक रैम इज़ ऑल्सो लोअर दैन द कैशे मेमोरी और द एस रैम। ठीक है, फिर उसके बाद में की फीचर्स देख लेते हैं। इट ब्रिजेस द CPU एंड रैम द स्पीड गैप बिटवीन CPU एज वेल एज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके बाद जो स्टैटिक रैम है, इट इज़ वेरी फास्ट एंड नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड देयर। देन डायनामिक रैम में क्या होता है, इट नीड्स कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग। ठीक है, देन रीड ओनली मेमोरी और द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट स्टोर्स फर्मवेयर एंड इट इज़ बाइट वाइज इरेजेबल। ठीक है, जैसे बूट फर्मवेयर अभी हमने पढ़ा था, बूट फर्मवेयर इसमें स्टोर्ड रहता है which is used when the system is starting up। ठीक है, देन एक्सटर्नल SSD होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसको, एंड इट हैज़ वेरी हाई कैपेसिटी, इट इज़ पोर्टेबल एंड वेरी ड्यूरेबल एज वेल। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेसिंग स्पीड। तो सबसे ज़्यादा एक्सेस स्पीड किसका है, कैशे मेमोरी का है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में डी रैम आता है। ठीक है, और उसके बाद में रोम आता है। सो द आंसर शुड बी द सी ऑप्शन। ठीक है, सो ये डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिखाया हुआ है। रोम हैज़ द स्लोएस्ट एक्सेस स्पीड बिकॉज इट इज़ रीड ओनली। Then DRAM, that is dynamic RAM, is faster than read-only memory and is used as a main memory. Cache memory is the fastest because it is located closest to the CPU and provides immediate data access. Next time we have to state true or false with regards to the following statements. Static RAM stands for short random access memory, तो ये गलत स्टेटमेंट है। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, DRAM stands for double random, again this is wrong, dynamic होता है इसका मतलब। ठीक है, so the answer is C, both of them are false. Next है, which of the following variations of RAM uses flip flops। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टैटिक रैम। तो फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, बेसिकली स्विच लाइक सर्किट होता है। स्विच होता है ना, ऑन ऑफ स्विच होता है, वैसे रहता है, एक सर्किट रहता है। ठीक है, it is basically a switch like circuit which is used for holding data. So the static RAM uses flip flops to store each bit of data. Flip flops are sequential logic circuits that maintain stable states, या तो 0 रहता है या 1 रहता है, and DRAM uses capacitors instead of flip flops. So this is very important। ठीक है, जो static RAM रहता है उसमें we will be having flip flops, whereas for the dynamic RAM we are having capacitors। ठीक है, तो capacitors basically store data as a temporary electric charge, whereas flip flops में 0 या 1 के फॉर्म में switch like mechanism रहता है, that is which holds the data। Next है, which of the following needs to be refreshed to retain data even when the power is on। So the answer for this is dynamic RAM. Dynamic RAM requires constant refreshing
ठीक है, बिकॉज इट यूजेस कैपेसिटर्स टू स्टोर डेटा विच लूज चार्ज ओवर टाइम। ठीक है, तो हमने वो लीकिंग बकेट वाला एनालॉजी देखा था। ठीक है, सो therefore data must be refreshed continuously even when the power is on, otherwise it will be lost. So dynamic RAM में जो dynamic है ना, it means charge leaks and the it needs constant refreshing to remember the data. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी, ये एनबीएस का क्वेश्चन है। सो द आंसर फॉर दिस इज स्टैटिक रैम। ठीक है, बाकी फ्लैश मेमोरी इज स्टेबल, नॉन वॉलेटाइल, ईपी रोम इज ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल, हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, स्टैटिक रैम लूजेज इट्स डेटा व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, thus making it a volatile memory. Flash memory, others are non-volatile in nature. Next, the information recorded on EEPROM is erased using which of the following? So the question was asked in KVS 2018. See, the answer for this is electric signals. ठीक है, EEPROM पे जो भी डेटा होता है ना, इंफॉर्मेशन होता है, इट इज erased using electrical signals. The name of, मतलब उसका फुल फॉर्म ही क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, the data can be erased as well as rewritten without removing the chip from the circuit. Next है identify the volatile memories from the following list. So क्या क्या दिया है, कैशे दिया है, SRAM, DRAM, hard disk, CD and DVD. So the answer is cache is a volatile memory, SRAM is volatile, DRAM is also volatile. Rest of them are non-volatile in nature. So the answer will be B. ठीक है, नेक्स्ट है NBS 2025 का है which of the following is type of a secondary storage device in a computer system. So ROM तो primary है, cache memory is also primary, RAM is also primary. So the answer is flash drive. ठीक है, that is secondary storage. Secondary storage devices store data permanently. A flash drive is a portable non-volatile secondary storage device. ROM, cache and RAM are primary memory types. ठीक है, next question, optical disk drive reads data from the surface of optical disks using dash. So NBS का क्वेश्चन है और इसका आंसर है लेजर बीम। ठीक है, जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, दे यूजुअली यूज लेजर बीम टू रीड डेटा फ्रॉम द surface of optical disks. Next question, in relation to memory, what is the full form of CDR? This was asked in NVS 2019. So CDR stands for compact disk recordable. ठीक है, ये C है ऑप्शन। CDR is a write once optical disk that allows data to be recorded once and read multiple times. ठीक है, और इसका एक दूसरा वेरिएंट होता है, वो होता है CDRW, वो होता है रीराइटेबल। ठीक है, उसमें वंस यू रिकॉर्ड इट यू कैन अगेन इरेज इट एंड री रिकॉर्ड इट। ठीक है, नेक्स्ट है एनवीएस का, ये है 2019 का क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू मेमोरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDRW? सो CDRW रेफर्स टू कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। इट अलाउज डेटा टू बी रिटन, इरेज्ड एंड री रिटन मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एनवीएस का है, 2019 का है, इन रिलेशन टू मेमोरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD? सो CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD stands for compact disk. It can store data up to 700 MB and is non-volatile in nature. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनवीएस का है अगेन, which of the following hardware keeps CPU, memory and input-output devices together in a computer system? So the answer for this is the motherboard. ठीक है, so the motherboard acts as the main platform that connects and allows communication between the CPU, memory, storage devices and input output devices. ठीक है, this is an important very important question. ठीक है, तो motherboard
तीनों के बीच में इट एक्ट्स एज अ लिंक. नेक्स्ट एनवीएस 2022 का क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स कैन ऑपरेट विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग. सो दी आंसर क्या क्या दिया है, रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, रोम. तो इन तीनों के बिना तो काम नहीं होगा. सो दी आंसर फॉर दिस विल बी द सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी बट इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली. Examples include hard disk, SSD, pen drive, CD, DVD, memory card, etc. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनवीएस 2022 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मेमोरी. सो द आंसर फॉर दिस इज, देखिए रैम नहीं है मैग्नेटिक, कैशे भी नहीं है, रोम भी नहीं है. द आंसर इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क is a magnetic storage device and is a type of secondary or non-volatile memory. It stores data using magnetic coating on rotating platters. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनवीएस 2022 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. CD-ROM is an optical disk that can only be read and not written on. Then both CD-R and CD-RW are optical disks. So the answer is 1 and 2 both are correct. ठीक है, CD-ROM is a read-only type optical disk and cannot be written on. CD write CD-R and CD rewritable are both types of optical disks. ठीक है, and therefore both statements are correct. CD-R का full form क्या था, CD-RW was CD rewritable, CD-R was compact disk recordable. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनवीएस 2022 का है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. CDR इज अ राइट वंस रीड मिनी डिस्क, अच्छा वर्म बोलते हैं इसको, एंड CDRW is allows data to be written, erased and rewritten. So both the statements are correct. CDR का full form क्या है, compact disk recordable. और CDRW का full form है compact disk rewritable. ठीक है, so both the statements are correct. नेक्स्ट है एनवीएस 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइंस अ कोस्टर मोस्ट एक्यूरेटली. ठीक है, कोस्टर के बारे में पूछा है. देखिए, basically a coaster is a recordable disk that becomes unusable after a burn failure. ठीक है, जैसे a coaster is a recordable disk such as CDR या CDRW. It becomes unusable if the writing process जो है ना, CD write जो हम करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, CD burn जब करते हैं, if the process fails then it becomes unusable. तो उसको हम ऐसे नॉर्मल कोस्टर की जैसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर कप्स ऐसे, मतलब लर्न करने के लिए बता रही हूँ, एनालॉजी दे रही हूँ. सो इट इज़ ऑफ नो यूज़ एनी मोर, उसको ऐसे फालतू यूजेस में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एनवीएस 22, based on the given statements identify which is true or false. In CD-ROM the recorded audio or software data cannot be written or erased. तो ये सही है, सही स्टेटमेंट है. रीड ओनली मेमोरी रहता है CD रोम में. CD-R जो होता है रिकॉर्डेबल इज अ राइट वंस डिस्क दैट अलाउज डेटा टू बी रिटन वंस एंड read many times वर्म. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, देन थर्ड क्या है, CD रोम इज नॉट अ परमानेंट स्टोरेज मीडियम. ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, इट इज़ इंडीड अ परमानेंट स्टोरेज मीडियम. ठीक है, सो इसमें वही दिया है कि CD-ROM is a permanent storage medium, so that statement is false. Next question, NVS 22, which of the following disks is the best for taking frequent backups? So the answer for this will be CD rewritable. ठीक है, compact disk rewritable is best for taking frequent backups because it can be erased and rewritten
मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KVS 23 का है। रैम स्टैंड्स फॉर वेरी सिंपल क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इट्स अ volatile primary memory used to temporarily store data and instructions which are being processed by the CPU. Next question. Main memory of a computer system is which of the following? तो ये KVS 23 का क्वेश्चन है. So the answer is volatile. ठीक है. So main memory refers to the random access memory which is volatile in nature. It loses all the stored data when the computer is switched off. Next है dash is used in implementing the cache memory. So the answer is RAM. ठीक है. The cache memory is implemented using high speed RAM that is known as static RAM. SRAM के through होता है implement. ठीक है. And cache is small fast volatile memory used to speed up the processing by storing frequently accessed data. ठीक है. CPU और जो मेन मेमोरी रैम है उसके बीच में आता है कैशे एंड इट वर्क्स बेस्ड अपॉन द एस रैम. ठीक है. नेक्स्ट है CD रोम स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सो द CD रोम का फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. सिंपल क्वेश्चन. इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली. ठीक है. एंड इट कंटेन्स डेटा रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग एंड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैन ओनली बी रेड यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो इसको ऐसे देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या रहता है. लेज़र के थ्रू इट इज़ रेड. उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव पॉलीकार्बोनेट लेयर होती है एंड देयर इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम लेयर ऑन टॉप. ठीक है. देयर आर अ लॉट ऑफ बिट्स एंड लैंड्स जहाँ पे परमानेंट डेटा है स्टोर्ड. नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम CD-ROM स्टैंड फॉर. अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है. कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट है NBS 22 का है. इन अ computer system with a standard configuration, which of the following will have the largest capacity in bytes? So the answer for this is hard disk. ठीक है. हार्ड डिस्क का रहता है अराउंड TBs में यू कैन स्टोर डेटा. ठीक है. हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव जो रहती है ना उसमें टेराबाइट्स का स्टोरेज रहता है. बाकी रैम में अराउंड 50 to 60 GB तक यू कैन स्टोर. रोम DVD रोम में अराउंड 5 GB के आसपास स्टोर हो सकता है. एंड पेन ड्राइव में भी 4-5 GB या कभी कभी थोड़ा जो बड़े वाले होते हैं दे गो फ्रॉम 30 to 200 GB एज सच. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी कैपेसिटी. NBS 25 का क्वेश्चन है. तो ये मैंने आपको बताया था एक इसका निमोनिक भी दिया था. उसका था वेट अ सेकेंड. बर्गर किंग मेक्स ग्रेट टोस्ट. बर्गर किंग सॉरी मेक्स ग्रेट टोस्ट और उसके बाद पेजी. ठीक है. तो B से रहेगा बाइट्स, K से किलो बाइट्स, देन वी हैव मेगा बाइट्स, देन गीगा बाइट्स, देन टेरा बाइट्स, फिर पीटा बाइट, एक्सा बाइट, फिर योटा बाइट और जेटा बाइट. ठीक है. जेड से क्या बोलते थे उसको. CZB. हाँ जेटा बाइट बोलते हैं. ठीक है. So according to this the answer will be option A. Next है which of the following option shows the correct decreasing order of memory capacity units. तो again वही उसी पे based है. So the answer for this is D. अगेन ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने वही सारा आपको बता दिया है. उसके बेसिस भी दी क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट. तो इन चारों में से एक्साबाइट इज द लार्जेस्ट. ठीक है. सेलेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ मेमोरी यूनिट्स. ठीक है. तो यही आप याद रखिए. बर्गर किंग मेक्स ग्रेट टोस्ट और पेजी. उसके बेसिस पे आंसर इज सी. तो ये वही दिया है. बर्गर किंग
मेक्स ग्रेट टोस्ट, फिर पेजी, PEZ, ठीक है। नेक्स्ट है KVS 2018 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द, ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। बिट क्या होता है, वही 0 to 1, निबल होता है 4 बिट्स, बाइट होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, अगेन वही सेम क्वेश्चन है। बर्गर किंग मेक्स ग्रेट टोस्ट, पेजी, then which of the following has highest capacity of memory, again same cheese, Burger King makes great toast, Pezzy. Next है a computer system generally has a memory storage to store large amounts of data permanently, which of the following options represents storage capacity that is equivalent to 16 GB, ठीक है। तो 16 GB में मतलब कितना रहेगा, हमें क्या क्या दिए हैं ऑप्शंस, ये सब दिए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वील हैव टू सॉल्व इट न्यूमेरिकली। 16 GB मतलब हम ऐसा करते हैं, सबको एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 to the power 20 MB इज इक्वल टू 2 to the power 20 इंटू 2 to the power 10 किलोबाइट्स, ठीक है। तो मतलब 2 to the power 30 किलोबाइट हो गया, सारों को ही किलोबाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 to the power 14 मेगाबाइट्स मतलब कि इंटू 2 to the power 10 किलोबाइट, ठीक है। तो हो जाएगा 2 to the power of 24 किलोबाइट, ठीक है। और हमें क्या बोला है, 16 GB दिया है, 16 GB को हम कन्वर्ट करते हैं किलोबाइट में। 16 मतलब कि 2 to the power मतलब 4 का स्क्वायर होता है ना 16, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 to the power 4 GB हो गया। इसको फिर से हम करेंगे, 2 to the power 4 GB इंटू 2 to the power 10 किलोबाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 to the power 14 किलोबाइट हो गया आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नहीं कुछ मेरे को गलत लग रहा है इसमें, अच्छा हाँ, GB में है ना, अरे ठीक है। तो GB से पहले क्या आता है, MB आता है, ये देखो, बर्गर किंग मेक्स ग्रेट टोस्ट, पेजी, ठीक है। तो GB से पहले MB में जाना पड़ेगा, फिर MB से KB में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 to the power 4 GB मतलब 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 10 क्या हो जाएगा, मेगाबाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर मेगाबाइट को अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोबाइट, तो ये हो जाएगा इंटू 10 to the power 10 इंटू 2 to the power 10 किलोबाइट्स, तो दैट विल बिकम 2 to the power 24 किलोबाइट्स, ठीक है। और ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ रैम ऑफ साइज 64 MB, if each addressable block of RAM is 1 byte, then how many address lines are required to represent each RAM block uniquely, ठीक है। तो इसमें बोला है कि रैम का साइज़ कितना दिया है, हमें 64 MB दिया है, और हमें बोला है कि एक ब्लॉक जो है 1 बाइट का है, तो हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ईच रैम ब्लॉक यूनिकली। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बाइट्स है उसमें। 64 MB मतलब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 6, ठीक है। 8 8 64 होता है ना, तो 2 to the power 6 हो गया MB। इसको हमको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ लिख लो बर्गर किंग मेक्स ग्रेट टोस्ट, पेजी, ठीक है। तो इसमें हम लोग हैं MB में हैं, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो 2 to the power 6 इंटू 2 to the power 10 किलोबाइट हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको और फर्दर कर देंगे तो इंटू 2 to the power 10 इंटू, ये किलोबाइट है, इंटू 2 to the power 10 बाइट्स हो जाएगा, ठीक है।
तो टोटल कितना होगा, 2 to the power 26 बाइट्स। 2 to the power 26 बाइट्स का रैम का साइज है हमारे पास। ठीक है, एक ब्लॉक में कितने एड्रेस लाइंस होते हैं ये आपको याद रखना है। हमें ब्लॉक का पूछना, एक ब्लॉक में देर आर 26 एड्रेस लाइंस। जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वैसे ही 26 एड्रेस लाइंस होते हैं एक ब्लॉक में। ठीक है, तो एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड 26 एड्रेस लाइंस। सो वी हैव टू टेल हाउ मेनी ब्लॉक्स आर how many address lines are required to represent each RAM block uniquely। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, हाँ वही हो गया ना, वेट अ सेकेंड। इसमें आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस पार्ट, लेट मी सी इसको कैसे करना है। ठीक है, देखिए जो एक हाँ ठीक है, अब मैं समझ गई, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था। एक ब्लॉक में 2 बाइट्स होते हैं, 2 बाइट्स। ठीक है, तो इस पूरे में एक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में देर आर 2 बाइट्स। ठीक है, अगर एक ब्लॉक में 2 बाइट्स हैं, देयर फोर हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स विल बी रिक्वायर्ड, 26 एड्रेस लाइन्स विल बी रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आंसर विल बी सी 26। यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अच्छे से कर लेते हैं। व्हाट विल बी द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी इफ इट यूजेस 20 एड्रेस लाइन्स एंड द साइज ऑफ ईच ब्लॉक इज 2 बाइट्स। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स क्या दिया है हमें, 20 दिया है, तो नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स कितना हो जाएगा, 2 to the power 20। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो एड्रेस लाइन्स होते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर साइज ऑफ ईच ब्लॉक कितना होता है, 2 बाइट्स रहता है। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल स्टोरेज कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 2 to the power 20 इंटू 2 बाइट्स, दैट मीन्स 2 MB के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है CPU's workspace। हाँ, which of the following CPU registers is used to store data and intermediate results produced by ALU। सो इसका आंसर क्या होता है, accumulator होता है। Basically the accumulator stores data and intermediate results from the arithmetic and logical unit। The program counter stores the next instruction's address। ठीक है, the instruction register holds the current instruction। The memory address register holds the memory address to be accessed। So this is a very important slide। ठीक है, इसको फिर से I'll just do this once more। इसमें क्या है, accumulator का क्या काम है, it basically stores data and intermediate results from the ALU। The program counter stores the next instructions। ठीक है, instruction register holds the current instruction, और memory address register में मेमोरी एड्रेस जो हमें एक्सेस करना है वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव टू एक्सपैंड द टर्म EPROM। EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इन विच स्टोर्ड डेटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग UV लाइट एंड रीप्रोग्राम्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इन FAT16 फाइल सिस्टम द मैक्सिमम फाइल साइज कैन बी। देखिए FAT16 का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और इसका मैक्सिमम साइज इज यूजली 4 GB रहता है। ठीक है, सो फाइल एलोकेशन टेबल इज यूज टू मैनेज फाइल ऑन डिस्क्स। FAT16 supports a maximum file size of 4 GB। If file allocation table is damaged, the hard disk data cannot be accessed properly। ठीक है, तो इसमें कोर टेकअवेज क्या है, द डेटा इज बिल्ट फ्रॉम बिट्स निबल्स एंड बाइट्स, और ये हमने मेमोरी हायरार्की देख ली थी। फिर
मेमोरी कैपेसिटी is directly linked to the number of address lines. ठीक है, तो 2 to the power lines into block into size. Conversions basically rely on the power of 2. और की टेक्नोलॉजीज क्या है? स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लाइक द CPUs, accumulator, EPROM chips, file systems like FAT16 have distinct roles and limitations. So thank you. That is all for this video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. I'll also be uploading the notes on my Telegram channel. Okay? Thank you.